ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ پیسہ کیا واقعی اتنا زیادہ اہم ہوتا ہے کہ اس کے بنا کوئی رشتہ نہیں رہتا۔ کوئی بھی انسان چاہے وہ سگا ہی کیوں نہ ہو، آپ کے پاس اگر پیسہ نہ ہو تو وہ آپ کو مڑ کر دیکھے گا بھی نہیں، اور اس بات کا اندازہ ہمارے معاشرے کی ذہنیت سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے، جہاں یہ سوچ کر بیٹی کو منحوس کہا جاتا ہے کہ وہ ہم پر بوجھ ہوگی، بیٹا ہوتا تو کما کر دیتا وغیرہ۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک کڑوی حقیقت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ کہنے کو تو دنیا ٹیکنالوجی میں بہت ترقی کرتی جا رہی ہے، مگر لوگوں کی ذہنیت اور فرسودہ رسم و رواج اور خود غرضی دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ میں بھی اسی معاشرے کی رہنے والی ہوں، جہاں اپنی مرضی سے سانس لینا بھی بعض دفعہ بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ میرا نام حمیرہ ہے۔ یہ نام میری نانی نے رکھا تھا۔ میرا بچپن ان کے پاس ہی گزرا تھا، کیونکہ اپنے باپ کو میں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ وہ اتنا ظالم انسان تھا کہ میری ماں کو بے حد بری طرح پیٹتا تھا، صرف اس لیے کہ میری ماں کے ہاں کوئی نرینہ اولاد نہ ہو سکی تھی۔ میری دادی کا کہنا تھا کہ پہلی اولاد لڑکا ہونا ضروری ہے، مگر یہ تو انسان کے ہاتھ میں تھوڑا ہی نہ ہوتا ہے۔ ہم کل 7 بہنیں تھیں اور ہم سب کی سب باپ کے لیے بوجھ کی مانند تھی۔ میں سب سے چھوٹی تھی۔ میرے باپ نے میری تو شکل بھی نہ دیکھی تھی اور ماں کو صاف کہہ دیا کہ اگر اسے اسپتال سے گھر لائی تو اسی وقت تجھے طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دوں گا۔ اماں نے گھر اجڑ جانے کے خوف سے وہیں سرکاری اسپتال کے ایک وارڈ میں پڑے پڑے نانی کے ہاتھ تھام کر ان کی منت کی کہ میری بچی کو اپنے پاس رکھ لیں، اور خود وہ اپنے گھر چلی گئیں۔ نانی مجھے لیے گاؤں آ گئیں، جہاں پر وہ اپنے آبائی گھر میں رہتی تھیں۔ ان کی 2 بہویں بھی ساتھ ہی تھیں۔ دونوں کو ہی میں ایک آنکھ نہ بھائی۔ انہیں لگا کہ یہ ان کی اولاد کے حق پر ڈاکہ ڈالے گی، اور اسی وجہ سے ساری عمر انہوں نے مجھے حقارت بھری نظر سے ہی دیکھا۔ نانی تو بوڑھی تھی، جیسے بھی کر کے مجھے سنبھال رہی تھی، مگر بہوؤں کی تیز دھار زبان کے آگے بند نہ باندھ پاتی۔ میں 10 سال کی تھی جب نانی رضائے الہی سے ایک رات اچانک چل بسیں۔ میں ان کے جنازے کے پاس بیٹھ کر گمسم بس چپ چاپ انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا ہر رشتہ ان کے ساتھ ہی ختم ہو گیا ہے۔ میرے لیے تو ماں باپ، بہن بھائی سب کچھ وہی تو تھیں۔ اب میں کیسے جیوں گی ان کے بنا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا جو میری زندگی میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا پتہ مامی لوگ مجھے گھر سے ہی نکال دیتے۔ ویسے بھی اکثر سب یہ بات کہتے تھے کہ جس کو اس کے سگے باپ نے نہیں رکھا اسے کوئی اور کیوں رکھے گا۔ جنازے پر اماں بھی آئی تھی، ساتھ میری بڑی بہن بھی۔ اماں اور بہن کو تو میں پہچانتی ہی نہ تھی، بس نانی سب کے نام بتا رکھے تھے۔ مجھے خود الفت کوئی محبت نہیں تھی کسی سے، ہوتی بھی کیسے؟ نہ کبھی کسی کے لمس سے آشنائی ہوئی اور نہ ہی کوئی کبھی بھولے بھٹکے سے بھی مجھ سے ملنے آیا۔ چلو ملنا تو دور کی بات، کسی نے کبھی ایک ٹیلی فون کر کے مجھ سے بات کرنے کی یا میری آواز سننے کی بھی کوشش نہ کی۔ ماں بس کبھی کبھار نانی کو فون کر کے میرے بارے میں پوچھ لیتی تھی، مگر کبھی یہ نہیں کہا کہ حمیرہ سے بات کروا دیں۔ میں نانی کے پاس کھڑی ان کی آواز سنتی رہتی تھی، اس آس میں کہ کب وہ مجھ سے بات کروانے کا کہیں گی، مگر یہ آس ہی رہی۔ ماں سے اپنا حال دل کہنا چاہتی تھی، کچھ ان کی سننی تھی، کچھ اپنی سنانی تھی، مگر کبھی ماں نے کوشش ہی نہیں کی۔ شاید انہیں میں رسمی طور پر یاد تھی بس۔ نانی اپنی طرف سے مجھے سمجھاتی کہ ان کی مجبوریاں بتاتی، مگر کیا اتنی مجبور تھیں کہ ایک بار بھی اولاد سے بات نہ کر سکیں، اس کی آواز نہ سن سکیں؟ یہ عقدہ تو بعد میں کھلا کہ ابا نے دوسری شادی کر لی تھی اور اماں بہنوں کو لے کر کہیں اور چلی گئی تھیں۔ پڑھی لکھی تھیں، ایک جگہ نوکری کر کے پال لیا۔ اگر ان سب کو پال لیا تھا تو مجھے پالنے میں کیا دقت تھی؟ بڑی 3 بہنوں کی شادی کر دی تھی، باقی سب بھی کام کرتی تھیں اور پڑھتی تھیں۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ کوئی ایک بہن نے بھی میرے لیے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اب جنازے پر آئیں تو مجھے گلے لگانے کے بجائے بس رسمی سا حال چال پوچھا۔ اگر ماں ایک بار گلے سے لگا لیتی تو شاید میں سب بھول کر شدت سے رو پڑتی، مگر ایسا نہ ہوا۔ وہ بس کچھ دیر ٹھہری اور چلی گئیں۔ جاتے جاتے بہن نے جو کہا وہ کئی دن تک مجھے دل میں چپتا رہا۔ اس نے دھیرے سے میرے کان میں کہا تھا کہ ابا صحیح کہتے تھے، تم واقعی منحوس ہو۔ دیکھو تمہاری پیدائش کے بعد ابا نے اماں کو طلاق کی دھمکی دی اور دوسری شادی کر لی۔ اماں اور ہم نے بہت مشکل زندگی جی ہے۔ اب اگر اماں کہیں بھی تو تم ہمارے ہاں آنے کی کوشش مت کرنا، ہم تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے لہجے میں بے حد حقارت تھی۔
पता नहीं ये सब उसने कहाँ से सीखा था, मगर उस वक्त उसकी कही गई उस बात ने तमाम रिश्तों पर से एतबार ही उठा दिया था। नानी क्या गई, मेरा सुख चैन सब साथ ले गई। उनके होते हुए जो मुझे 2 वक्त की रोटी इज्जत से मिल जाती थी, तब वो मिलना भी बंद हो गई। मैं जो नानी के होते हुए स्कूल जाती थी, अब सबसे पहले बड़ी ममानी ने मेरा स्कूल जाना बंद करवा दिया। उनके नज़दीक ही एक फजूल खर्ची थी। उनके अपने सारे बच्चे स्कूल जाते थे और मैं तो गांव के सरकारी स्कूल में जाती थी, मगर ये भी कबूल नहीं था उन्हें। तभी मुझे हटवा दिया। मामी का कहना था कि हम अकेले घर का काम करके थक जाती हैं, इसीलिए तुम हमारा हाथ बटाओगी। वो मुझसे बहाने बहाने से सारा काम करवाती। मेरी उम्र उस वक्त बहुत कम थी, मुझसे इतना काम नहीं किया जाता था, मगर यहाँ मुझ पर तरस खाने वाला कोई नहीं था। मुझे ईद पर भी नए कपड़े नहीं मिलते थे। मेरे सारे कज़न्स मेरा मजाक उड़ाते थे। उनकी माँओं ने उनके खूब कान भरे हुए थे। मामी तो कभी कभी बहुत जुल्म करती, मुझे खाना भी नहीं देती थी। उन्हें ज़्यादा गुस्सा आता तो घर से बाहर पूरी रात खड़ा रखती। मामू को मेरी झूठी शिकायतें लगाती थी। मैंने कभी उन्हें पलट कर जवाब नहीं दिया था और वो इस बात का बेहद फ़ायदा उठाती थी। एक दिन ममानी ने मेरी शादी तय कर दी, गांव में ही एक आदमी से। बस 2 जोड़ों में रुखसत किया मुझे। मैं समझी शायद अब ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी, मगर यह ख्याल गलत साबित हुआ। शादी के बाद तो असल इम्तहान शुरू हुआ था। हम सफ़र तो सुना था ठंडी छाँव की मानंद होते हैं, मगर यहाँ पर तो उलट ही था। नौमान एक बेहद कामचोर आदमी था। उसे बस मुझ पर अपना रोब जमाना आता था। कोई काम काज नहीं करता था। घर जेठ की तनख्वाह पर चलता था और जेठानी खूब ताने देती थी मुझे। सास भी उसी की साइड लेती। मैं पहली बार जब उम्मीद से हुई तो जेठानी जानबूझकर मुझसे बेहद मुशक्क़त वाले काम करवाती थी, जिससे मेरी हालत बहुत बुरी हो जाती थी। सास कहती मुझे पोता ही चाहिए। शौहर की भी यही रट होती थी कि बेटा ही होना चाहिए। उन सब की बातें सुनकर मैं भी यही दुआ करती, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी मेरी तरह रुल जाए। वो 9 माह बहुत अजियत में गुजारे थे। जेठानी के ऊपर तले के 2 बेटे थे और वो बहुत गरूर करती थी इस बात पर। ये सब करते हुए वो भूल गई थी कि खुद भी वो किसी की बेटी ही है। मैं दिन भर सबकी बातें सुनकर रात को जो कुछ देर आराम करने का सोचती तो शौहर की तानेबाजी शुरू हो जाती थी कि हर वक्त बिस्तर तोड़ती रहती है। हालांकि मैं जिस वक्त से गुजर रही थी मुझे बेहद आराम की और अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत थी, मगर किसी को क्या परवाह। मैं बेहद कमज़ोर हो गई थी। डिलीवरी के वक्त दाई ने हाथ लगाने से ही मना कर दिया और कहा कि फ़ौरन अस्पताल ले जाओ, वरना ये नहीं बचेगी। मजबूरन मुझे अस्पताल ले गए। सरकारी अस्पताल की डॉक्टर ने केस देखा और कहा बहुत बुरी हालत है। खैर बड़ी मुश्किल से ये मरहला तय हुआ। मेरे यहाँ बेटी हुई थी। जब डॉक्टर ने मेरे हाथों में थमाई तो मेरा दिल बहुत ही अजीब तरह से धड़का था। माँ बनने का एहसास ही कुछ और होता है, मगर सास और नौमान को बहुत गुस्सा आया कि बेटा क्यों नहीं हुआ। हर वक्त बस यही ताना मिलने लगा। दूसरी दफ़ा भी बेटी हुई। ससुराल में सभी ऐसे सोच रखते थे सिवाय एक नंद के। वो पढ़ी लिखी और शादीशुदा थी। उसकी शादी शहर में एक अमीर आदमी से हुई थी। वो मुझे फ़ोन करके हौसला देती थी, मगर ये सब तसल्लियाँ और दिलासे कुछ भी तो काम ना आया था। जब मेरी तीसरी बेटी हुई तो सास ने घर पर तूफ़ान खड़ा कर दिया था। रोज़ मुझे मारती और ताने देती। मेरी बेटियों से शदीद नफ़रत करती। जब बेटी 1 माह की हुई तो उसने नौमान को खूब भड़काया और मुझे तलाक देने को कहा। नौमान ने माँ की बात मानकर फ़ौरन से मुझे तलाक दे दी। मेरे हवास सल्ब हो गए। ना कोई छत थी ना कोई ठिकाना। जाती तो कहाँ जाती। हिम्मत करके मामू के यहाँ गई, मगर मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही यह खबर गाँव वालों की ज़बानी उन तक पहुँच चुकी थी, इसलिए दरवाज़ा मेरे मुंह पर ही बंद कर दिया गया। माँ का ख्याल आया। बहुत मुश्किलों से उनसे राब्ता किया तो बहन ने वहाँ आने से साफ मना कर दिया। अब कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इन 3 मासूमों के साथ कहाँ जाऊँ। तभी नंद का ख्याल आया क्यों ना उससे मदद मांगी जाए। मैंने पड़ोसन के घर से उसको फ़ोन किया और सारी बात बताई। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें लेने आ जाती हूँ। फिर वो शाम तक गाँव आ गई। घर पर काफ़ी लड़ाई भी की उसने। फिर मुझे साथ लिए शहर में बने अपने घर में ले आई। कुछ दिन बाद उसका ससुर रहने आया और फिर उसने मेरे लिए शादी का पैगाम भेजा। मैंने हाँ कर दी। कब तक ऐसे रहती। नंद के पास सारी ज़िंदगी तो नहीं रह सकती थी। वो काफ़ी अमीर था। सालों पर साल गुजरते गए। बच्चियाँ बड़ी हुईं तो नंद ने कहा एकदम बच्चियों को लेकर यहाँ से चली जाओ। मुझे लगा कि जल रही है मुझसे, मगर उसकी बात तब समझ में आई जब एक रात अचानक से आँख खुली और देखा शौहर उठकर बाहर जा रहा है।
मैं तजस्सुस में पीछे गई तो ये देखकर दिल रुक सा गया कि मेरा शौहर अपने साथ मेरी दूसरी नंबर वाली बेटी को कहीं लेकर जा रहा था। बेटी काफ़ी सजी संवरी थी और खूब बन ठन कर साथ जा रही थी। मैंने कभी अपनी बेटी को इस तरह का लिबास जेब तन नहीं करने दिया था, मगर अभी उसने इंतहाई बारीक कपड़े की सुर्ख रंग की साड़ी पहन रखी थी और पाँव में हाई हील पहनी हुई थी। उसका हुलिया बहुत ही अजीब था। डार्क रेड कलर की लिपस्टिक लगाए, बालों को खोले वो मटक मटक कर उस वक्त मेरे शौहर के साथ गाड़ी में बैठ रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उसी वक्त मेरी नज़र गाड़ी में बैठे एक और शख्स पर पड़ी। वो तो बिलाल था। मैं हैरान हुई कि ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है। वो तो इतने मशहूर बिजनेसमैन, जो कि मेरे शौहर के दोस्त भी थे, उनका इकलौता बेटा था। फिल्म इंडस्ट्री में काम करता था। उसके बारे में काफ़ी बातें मशहूर थीं कि लड़कियों से दोस्तियां वगैरह करता है और उनका गलत इस्तेमाल भी करता है। मुझे तो वो पहली नज़र में ही पसंद नहीं आया था, मगर शौहर की वजह से बर्दाश्त कर लेती थी। वैसे तो वो कभी हमारे घर नहीं आता था, मगर कभी कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी दावत पर उससे मुलाकात हो ही जाती थी। मगर मेरी बेटी उस वक्त उसके साथ यहाँ गाड़ी में क्या कर रही थी और ये दोनों एक दूसरे को जानते कैसे थे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने देखा मेरे शौहर उसे गाड़ी में बिठाकर वापस अंदर की तरफ आ रहे हैं। उनके राहदारी में पहुंचने से पहले ही मैं अपने कमरे में पहुंचकर सोती बन गई, ताकि उन्हें बिल्कुल भी शक ना हो कि मैंने ये सब देख लिया है। वो अंदर आए और दूसरी साइड पर आकर सो गए। मैं वो पूरी रात सो ना पाई। मैंने सारी रात आंखों में काटी। बस रह रहकर बेटी का ख्याल आ रहा था। मैंने काफ़ी बार उसे कॉल करने की भी ट्राई की, मगर हर बार उसका नंबर ऑफ जा रहा था। न जाने उस लड़के के साथ कहाँ गई होगी। अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि अभी शौहर को झंझोड़ कर उठाऊं और पूछूं कि उस औबाश के साथ मेरी बेटी को कहाँ भेजा है, मगर उस वक्त सब्र और तहम्मुल से काम लेने का वक्त था, वरना सब कुछ बिगड़ सकता था। मुझे इंतहाई राजदारी से इन सब के बारे में पता लगाने की ज़रूरत थी। अगली सुबह मेरे शौहर उठे तो कहा, हुमैरा मेरा सूटकेस रेडी करवा देना, आज मुझे एक मीटिंग के सिलसिले में बाहर मुल्क जाना है। मैंने कहा ठीक है। वो अक्सर ही कहीं ना कहीं बिजनेस के सिलसिले में आते जाते रहते थे, इसलिए मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किए और मुलाजिम से उनका सूटकेस रेडी करने को कह दिया। मेरा सारा ध्यान उस वक्त अलीशा पर था। बस मैं चाहती थी जल्दी से शौहर को ऑफिस भेजकर मैं बच्चियों को जाकर देखूं। नाश्ता जैसे ही ख़त्म हुआ, शौहर ऑफिस के लिए निकल गए। तभी मैं फ़ौरन से ऊपर वाले पोर्शन में आई जहां दोनों बेटियों का कमरा था। रिमशा तो अपने रूम में ही सो रही थी, मगर अलीशा कहीं नहीं थी। मैंने दोबारा उसका नंबर ट्राई किया तो बंद जा रहा था। मैं बेचैनी से लाउंज में टहलने लग गई। कुछ देर में रिमशा उठकर नीचे आ गई। मुझे यूं परेशान देखकर तेज़ी से मेरी तरफ आई और बोली, मॉम क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? क्या हुआ, कोई बात हुई है या पुप्पो ने कुछ कहा है? उसे लगा शायद फिर नंद ने कुछ कहा तो मैं इस वजह से बेचैन हूँ, मगर मेरी बेचैनी की वजह तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अलीशा थी। मैंने रिमशा का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाया और फिर उसे कहा कि देखो, तुम मुझे सच सच बताओ, अलीशा कहाँ है? मेरे इस तरह सवाल करने पर उसने हैरत से मुझे देखा और कहा, मॉम आप ये सुबह सुबह कैसा सवाल कर रही हैं? अलीशा कहाँ हो सकती है? यहीं अपने कमरे में होगी। आपको पता है ना कि जब से वो यहाँ आई है तकरीबन रोज़ ही लेट उठने लग गई है। मैंने कहा, हाँ यही तो बात है, वो ऐसा क्यों कर रही है? पहले तो वो इतना नहीं सोती थी और अभी मैंने रूम में देखा था वो वहाँ नहीं थी, बल्कि कल रात। अभी मैं बात कर ही रही थी कि सीढ़ियों से अलीशा आती दिखाई दी। उसे देखकर रिमशा बोली, ले देख लें, ये रही अलीशा आपी। मैंने कहा था ना सो रही होगी। आप भी ना ख्वामख्वाह परेशान होती हैं। मैंने कहा नहीं, अभी अपने रूम में नहीं थी। यूं हमें बात करता देखकर वो हमारे पास आ गई और खुमार आलूद आवाज़ में बोली, क्या हुआ मॉम, इतनी सुबह सुबह क्या टेंशन पाल रही हैं? मैंने कहा, अलीशा यहाँ मेरे पास बैठो और मैं जो पूछूं मुझे सब सच सच बताओ। मैंने कहने के साथ ही उसके चेहरे की तरफ देखा जहाँ घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, मगर फिर उसने कमाल महारत से अपने तासुरात छुपाए और कहा कि क्या बात है? मैंने कहा, रात तुम कहाँ थी और सुबह भी रूम में नहीं थी? मुझे सिर्फ सच सुनना है। पहले तो वो साफ मुकर गई, मगर फिर मुझे बेहद संजीदा देखकर सब सच सच बता दिया और जैसे जैसे बताती जा रही थी मेरे और रिमशा के चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। मुझे उस वक्त समझ में आया कि मेरी नंद ने आखिर मुझे क्यों दूर रहने को कहा था उस शख्स से। मैं अब उसकी सारी बात सुनकर सर थामे बैठी थी। समझ नहीं आ रहा था कुछ भी कि क्या करूं। मैंने अलीशा से कहा कि अब से वो घर से बाहर हरगिज़ नहीं निकलेगी, मगर मेरी बात सुनते ही वो हत्थे से ही उखड़ गई और बोली, मैं हरगिज़ भी अब पीछे नहीं हटूंगी, बल्कि आप क्या, मुझे कोई नहीं रोक सकता।
वो बेहद ज़बान चला रही थी। रिमशा उसे ज़बरदस्ती उसके कमरे में ले गई। दोपहर के करीब शौहर वापस आए और बोले, मेरे लिए कॉफ़ी रेडी करवा दो, बस कुछ देर में निकल रहा हूँ। मैंने उनकी बात का जवाब नहीं दिया और कहा, आप मुझे बताएं कि मेरी बेटी को आप किस राह पर चला रहे हैं। मेरी बात पर एक पल को वो चौंक गए, मगर फिर बोले, किस राह की बात कर रही हो? वजाहत देना पसंद करोगी? मैंने कहा, रात मैंने उसे बिलाल के साथ जाते देख लिया था और आपको भी वहाँ देखा था। जब अलीशा से पूछा तो उसने सब बता दिया। आपने क्या सोचकर ये सब किया? और वो इतनी ज़बान चला रही है, इन सबको छोड़ने पर भी राज़ी नहीं है। शौहर ने कहा, हरगिज़ उसके साथ ज़बरदस्ती मत करना, वो ये सब अपनी मर्ज़ी से कर रही है, किसी ने मजबूर नहीं किया उसे। अच्छे खासे पैसे कमा रही है और पैसा आता किसे बुरा लगता है। और ख़बरदार, तुम उसे हरगिज़ मना नहीं करोगी, क्योंकि बिलाल के बाप के साथ एक बिज़नेस डील फाइनल की है और ये डील सिर्फ उसी शर्त पर फाइनल हुई थी कि अलीशा बिलाल को भाग गई थी और उसने मांग ली। मैंने हाँ कर दी, पैसा और बिजनेस दोनों हो गए साथ साथ। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा और कहा, मेरी बेटी कोई बिकाऊ माल नहीं है। वो एक कदम आगे और गुर्रा कर बोले, तुम्हारी बेटी कोई छोटी बच्ची नहीं है जिसे वरगलाकर ये सब करवाया हो, वो अपनी मर्जी से कर रही है। वो ये कहकर चले गए। मैंने और रिमशा ने अलीशा को बहुत समझाया कि ये सब छोड़ दे, मगर उसकी आंखों पर तो पैसे और शोहरत की पट्टी बंधी थी। उसने मुझे बताया कि बिलाल ने एक बार उसे दावत में देखा था, तभी उसने मुझे अपनी नई आने वाली फिल्म में एक्टिंग करने की ऑफ़र की थी। मैंने कबूल कर ली। अंकल ने भी कहा कि कर लो, बस इसी की शूटिंग के लिए जाती थी, आपको पता न चले, इसीलिए पिछले दरवाजे से वापस आती थी। मगर मैं ये सब नहीं छोड़ना चाहती, बेशक आप कुछ भी कहें। मैं मॉडलिंग और फिल्म की दुनिया में बहुत नाम और पैसा कमाना चाहती हूँ। मैं तो दिल थाम कर रह गई थी ये सब जानकर। नंद को पता चला तो उसने कहा, मुझे इनके तेवर पहले ही ठीक नहीं लगते थे, तभी मना किया था। खैर, उसने भी बहुत समझाया उसे, मगर उसने ज़िद पकड़ ली, बिलाल से शादी की। शौहर वापस आए तो बिलाल रिश्ता ले आया। मैं राज़ी नहीं थी, मगर बेटी ने कहा, मैं भाग कर लूँगी शादी, तो मजबूरन मुझे हाँ करनी पड़ी। कुछ अरसे बाद ही दोनों के झगड़े शुरू हो गए। शौहर ने सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए ये शादी करवाई थी, मगर अब क्या किया जाता, दोनों हर वक्त लड़ते। बिलाल ने मना कर दिया उसे कि मीडिया इंडस्ट्री छोड़ दे। जो बात मैं उसे समझा रही थी, वही बात अब उसका शौहर कह रहा था। ना चाहते हुए भी उसने इंडस्ट्री छोड़ दी। कुछ वक्त बाद मेरे पास आई और माफ़ी मांगने लगी। मैं माँ थी, गले से लगा लिया और उसे समझाया। उसने अपने शौहर के साथ अच्छे से रहना शुरू किया तो वो भी समझने लगा और ये सब छोड़कर बिजनेस की तरफ आ गया। मेरा दिल थोड़ा पुरसकून हुआ। रिमशा अभी डॉक्टर बन रही थी, उसकी शादी भी कुछ वक्त बाद करने का सोचा था। यूं तो ज़िंदगी में सब ठीक था, मगर माँ का प्यार ना मिलने की जो एक कसक थी वो अब तक दिल में बाकी थी और शायद हमेशा रहनी थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।